Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. So if I ask you, how does a Google Map decide the best route for you? Or how does ChatGPT answer your questions? Or how does a self-driving car decide when to brake? So all of these are intelligent agents, right? So today we'll see what is inside an intelligent agent, that is the structure of agents. So let's begin. So far in our previous lectures, we have studied what is an agent, what do we mean by sensors, what are actuators, what is an environment, what is the Pease model, what are the properties of environment. Now the next question is, how does the agent actually make a decisions, right? So the answer is using the agent program. So what is an agent program? So an agent program is basically a program that takes input from the sensors and decides what action should be performed, right? So in simple words, we can say agent program is nothing but the brain of the agent. So agent program is basically the brain of an agent. Like suppose, for example, let me take an example of the vacuum cleaner, the robot vacuum cleaner, right? So robot vacuum cleaner receives the information that the room is dirty, right? The current location of the vacuum cleaner is, let's say, room A. The agent program thinks that if the room is dirty, clean it. Then it sends the action that it has to suck the dirt. So basically, sensors gave input to the agent program, which led the agent program to take an action that it has to suck the dirt. So basically, what is the architecture of any agent? So what is the agent architecture? Now let's say if I ask you that can any software run without its hardware? Like can any computer system run without the hardware? No. The answer is no, right? So the software needs hardware. Similarly, any agent program also needs the hardware, and that hardware is nothing but the agent architecture. तो बेसिकली एजेंट आर्किटेक्चर क्या होता है? एजेंट आर्किटेक्चर इज द फिजिकल मशीन जहां पे एजेंट प्रोग्राम जो होता है रन करता है. लाइक इट कैन बी कंप्यूटर, इट कैन बी अ रोबोट, इट कैन बी अ मोबाइल फोन, इट कैन बी एनी सेल्फ ड्राइविंग कार हार्डवेयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जाम्पल लिया, तो सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में द आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ, so in case of self driving car, the architecture consists of cameras, it consists of GPS, it consists of sensors, it consists of the steering, right? It consists of wheels and it consists of computer, right? All of these are forming the architecture. Then program क्या होगा? That is enabling self-driving car to move. उसके अंदर एक driving algorithm होगी, right? So together they become the self-driving. So this hardware plus this software program, that is the driving algorithm, together they form the self-driving car agent, right? Similarly, let's take another example of ChatGPT. So अगर हम ChatGPT का example ले, which everyone uses nowadays, so ChatGPT के architecture में the architecture consists of, so one we have the architecture and other we have the program. So architecture of ChatGPT are the servers, then the GPU, then computer hardware. So all of these form the architecture. And what is the program? The program is the basically the GPT model. And together this architecture plus program makes the ChatGPT work, right? So basically we can say that agent is nothing but the architecture plus the program. So any agent consists of two parts. One is the architecture, which is the hardware, and the other is the program. Let's say अगर हम human का example ले, so human के example में जो program है, that is what? Our brain. Our brain हमारे जो भी stimulus receive करते हैं उसके basis पे our body acts, right? But अगर हम architecture और hardware की बात करें, architecture और hardware क्या होगी? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है. सो टुगेदर आर आर्किटेक्चर प्लस द ब्रेन comprises our entire human body and we become an intelligent agent. We act like an intelligent agent. So architecture is the body and program is the brain, and together they make the human, which is an intelligent agent. तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंसर्स जो होते हैं,
दे पास वट एवर इन्फॉर्मेशन दे रिसीव टू द एजेंट प्रोग्राम। एजेंट प्रोग्राम हमारा डिसीजन मेक करता है उसके बेसिस पे कि उसको क्या डिसीजन लेना है, एंड एक्चुएटर्स जो होते हैं वो उसके बेसिस पे एक्शन लेते हैं, राइट। सो ये जो इंटायर सिस्टम है, this sensors, agent program, actuators, this entire system, it runs on an hardware जिसको हम कहते हैं that is the agent architecture. When we talk about agent program or when we discuss about the architecture of agent program is, suppose the program says, हमारे program says that walk forward, right? Now अगर मेरा walk forward program है, this is my program, तो क्या ये प्रोग्राम जो है, कैन दिस प्रोग्राम रन ऑन एनी नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर? क्या मैंने कोई प्रोग्राम है इस नॉर्मल डेस्कटॉप या किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकती हूँ जहाँ पे मेरे प्रोग्राम में लिखा है वॉक फॉरवर्ड? नो, राइट, बिकॉज वाई? बिकॉज डेस्कटॉप या कंप्यूटर जो है इट हैज नो लेग्स। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो मेरा प्रोग्राम है और जो आर्किटेक्चर है वो मैच होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में मिसमैच होगा तो वो हमारा एजेंट जो होगा वो ठीक से काम नहीं करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रोग्राम जो हो रहा है वो कह रहा है पिकअप द बॉक्स, तो जो आर्किटेक्चर है उसमें इंक्लूड होना चाहिए बॉक्स को। कौन पिकअप करेगा? बॉक्स को पिकअप करेगा। अगर सपोज कोई रोबोट को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पिकअप द बॉक्स, ये मेरा प्रोग्राम है, तो उसको उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए जो मेरा रोबोट है उसके आर्किटेक्चर में क्या क्या होना चाहिए? एक रोबोट आर्म होनी चाहिए, राइट। देन उसके अंदर मोटर्स होनी चाहिए जो अपने हैंड को मूव करे। देन उसके अंदर एक ग्रिपर होना चाहिए जो उस बॉक्स को ग्रिप करे, राइट। अदरवाइज अगर ये सारी चीजें मैच नहीं होंगी, दैट मीन्स जो आर्किटेक्चर है और जो मेरा प्रोग्राम है वो आपस में मैच नहीं होंगे, तो क्या होगा? जो मेरा एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा, राइट। तो सेंसर्स ने आपके एजेंट प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन तो दे दी, सेंसर्स ने एजेंट प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन तो ले दी, एजेंट प्रोग्राम ने उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया, बट एक्चुएटर्स उस एक्शन को तब तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक जो मेरा प्रोग्राम है और जो आर्किटेक्चर है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, राइट। So from this we come to the next topic, which is agent programs. Let's look at the different types of agent programs that we have. The first type of agent program is a table driven agent. So what is a table driven agent? So to understand table driven agent, example लेते हैं. Suppose let's say I give a notebook to any student. मैंने किसी student को एक notebook दी, right? अब उस notebook के अंदर every possible question already has its answer. जो भी possible questions उस subject से related हो सकते हैं, सारे questions along with its answers is already given, right? तो student को क्या करना है? Simply notebook खोलनी है, question देखना है, उसका answer read करना है, right? So this is exactly how an table driven agent works. तो table driven agent में क्या होता है? टेबल ड्रिवन एजेंट जो होगा वो स्टोर करके रखता है एवरी पॉसिबल सिचुएशन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन इन अ टेबल। तो जैसे ही कोई न्यू सिचुएशन आएगी आपको सिंपली टेबल को देखना है कि ये पॉसिबल सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या एक्शन लेना है, राइट। सो बेसिकली एक टेबल हमें गिवन है, उस टेबल के अंदर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उसके क्या क्या एग्जाम एक्शन हमें लेना है वो सब कुछ ऑलरेडी रिटन है। So you don't have to apply your brain, just simply open the table and simply refer to the situation और उसके corresponding जो action लेना है उस पर हम act कर सकते हैं, right? For example अगर हम वैक्यूम क्लीनर का एग्जाम्पल लें तो वैक्यूम क्लीनर के एग्जाम्पल में लेट्स से मुझे ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, मेरी सिचुएशन क्या है? अगर ए डर्टी है एक्शन क्या लेना है? सक। अगर ए क्लीन है एक्शन क्या लेना है? राइट में मूव कर जाओ, दैट इज टू रूम बी। अगर बी डर्टी है एक्शन क्या लेना है? सक। अगर बी क्लीन है तो एक्शन क्या लेना है? लेफ्ट, राइट। तो सपोज अगर सेंसर ने इंफॉर्मेशन दी दैट ए इज डर्टी, तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट क्विकली टेबल को चेक करेगा, ए डर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन क्या है? सक, right? So it will simply refer to that particular action and it will accordingly perform. Agent program जो हमें given है for the corresponding table driven agent. तो table driven agent क्या करता है? सबसे पहले क्या होगा? उस table driven agent को एक percept received होगा, right? परसेप्ट रिसीव होगा और वो रिटर्न क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा उस परसेप्ट के बेसिस पे एक्शन को रिटर्न करेगा, राइट। तो हमें एक न्यू परसेप्ट रिसीव हुआ, जैसे हम वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे परसेप्ट रिसीव हुआ दैट ए इज डर्टी, राइट। हम क्या करेंगे? इस परसेप्ट जो हमें रिसीव हुआ इसको स्टोर करके रख लेंगे अपनी मेमोरी में, राइट। सो बेसिकली अब एजेंट को पता है कि उसने क्या देखा है। अगर रूम ए उसने जो परसेप्ट उसको रिसीव हुआ उस परसेप्ट को जाके अपनी टेबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो परसेप्ट्स अ सीक्वेंस इनिशियली एम्प्टी, टेबल जो है टेबल ऑफ एक्शंस इंडेक्स्ड बाय परसेप्ट सीक्वेंसेस इनिशियली फुली स्पेसिफाइड। तो परसेप्ट रिसीव हुआ, ए डर्टी उसने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया,
देन अपेंड कर लिया परसेप्ट टू द एंड ऑफ परसेप्ट से, वही मतलब है कि हमने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। देन क्या हुआ, हमने टेबल, कोई हमें परसेप्ट आया, हमने अपनी टेबल में सबसे पहले सर्च करा, तो लुकअप किया हमने, परसेप्ट को अपनी टेबल में सर्च करा और उस परसेप्ट पे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एक्शन गिवन है वो एक्शन हमने नोट किया और उस एक्शन को हमने रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले परसेप्ट रिसीव कर रहे हैं, उस परसेप्ट को अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, देन टेबल को सर्च कर रहे हैं एंड देन अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, हम इन सारे परसेप्ट्स को स्टोर करके क्यों रख रहे हैं? व्हाई डज द टेबल ड्रिवन एजेंट इट स्टोर्स all percepts, right? Why does it store? Because yesterday, suppose वैक्यूम क्लीनर के एग्जांपल में yesterday हमें परसेप्ट रिसीव हुआ that A was dirty, right? Today हमें परसेप्ट रिसीव हुआ that B is dirty. कल हमें लेट्स से परसेप्ट रिसीव होगा A becomes clean. अब एजेंट क्या है? एजेंट को तो सब कुछ याद रख रहा है, एजेंट सब कुछ, हमने ये भी अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो जो एजेंट परसेप्ट रिसीव करता है उसको स्टोर करके रखता है, राइट? सो बेसिकली दैट बिकम्स द एंटायर परसेप्ट सीक्वेंस। परसेप्ट सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ परसेप्ट्स व्हिच इज रिसीव्ड ओवर टाइम, वो सारी एक एक करके वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है एंड वो सारी परसेप्ट एक एक करके बन जाते हैं द परसेप्ट सीक्वेंस। अब इस टेबल को वो यूज करेगा, इस हिस्ट्री को वो यूज करेगा टू डिसाइड द नेक्स्ट एक्शन। तो बेसिकली टेबल ड्रिवन एजेंट में वो सारे के सारे परसेप्ट्स को स्टोर करके रखता है। अब इसके पॉसिबल ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? क्यों ये अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है? तो वाई इज टेबल ड्रिवन एजेंट नॉट प्रैक्टिकल? इसका एग्जाम को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल मैप्स। सो इमेजिन गूगल मैप्स, अगर गूगल मैप्स जो है, क्या गूगल मैप्स के केस में हम टेबल बना सकते हैं फॉर एवरी रोड, हर एक ट्रैफिक कंडीशन, एवरी वेदर, एवरी एक्सीडेंट, एवरी सिग्नल, एवरी डेस्टिनेशन? इज इट पॉसिबल फॉर मी कि गूगल मैप्स एक तरीके का एजेंट ही है, राइट? तो अगर उस एजेंट के लिए मैं टेबल ड्रिवन एजेंट अप्रोच को वर्क करवाऊं तो क्या हम टेबल बना सकते हैं इन सारे सिनेरियोज के लिए, जो भी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं और हर एक सिचुएशन के अंदर गूगल मैप को क्या रिस्पॉन्ड करना है, राइट? सो दैट टेबल वुड बिकम अनबिलीवेबली ह्यूज, राइट? सो दैट इज व्हाई टेबल ड्रिवन एजेंट जो है वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती। सिमिलरली अगर मैं चेस का एग्जांपल लूं, अगर चेस के एग्जांपल में मैंने टेबल एक टेबल बनाई, जितनी भी पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं फॉर एवरी सिनेरियो, फॉर एवरी सिचुएशन, अगेन दैट बिकम्स इनॉर्मसली ह्यूज, राइट? सो दैट इज व्हाई टेबल ड्रिवन एजेंट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, हमेशा हमें करेक्ट एक्शन देता है अगर मेरी टेबल कंप्लीट है। बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, दैट इट रिक्वायर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मेमोरी, it is very slow to build and it is impossible for real world agent, right? Agent that we have is reflex vacuum agent. So reflex vacuum agent जो होता है वो एक तरीके का improvement है over the table driven agent. So instead of here storing the huge table, ये simply follow करता है if else rules को, if else rules, right? So basically how does it work? अगर status जो है वो dirty है then return कर दो suck, right? else अगर मेरी लोकेशन A है तो रिटर्न राइट, एल्स इफ लोकेशन बी है देन रिटर्न लेफ्ट, राइट? सो बेसिकली एक तरीके का क्या है, ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है और ये अवॉइड करता है स्टोरिंग द मैसिव अमाउंट ऑफ टेबल जो टेबल ड्रिवन एजेंट में होता था। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो लेट्स से अगर मैंने किसी भी हॉट पैन को टच किया, राइट? तो क्या हैंड हटाने से पहले हम क्या सोचेंगे, उसको 5 मिनट से इमीडिएटली अपना हैंड रिमूव कर देंगे, राइट? हमारे ब्रेन से इमीडिएटली स्टिमुलस आएगा कि अपने हैंड को रिमूव करो, राइट? तो ये हमारी जो बॉडी होती है वो इमीडिएटली अपने हैंड को रिमूव कर रही है। सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन। तो यही सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का क्या मतलब होता है? जो इमीडिएट एक्शन लेता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। So simple reflex agent takes immediate action without thinking about the past or future. So basically ये completely ignore करता है past को. It chooses an action only on the basis of the current percept, that is current situation. It completely ignores the past. So basically simply हम simple reflex agent में ये देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, what is happening right now, right? और जो अभी currently हो रहा था उसके basis पे वो action लेता है. It does not remember the previous events. Now to understand simple reflex agent, let's take the example of vacuum cleaner, right? Suppose let's say the vacuum cleaner is currently in room A, right? Sensor कहता है that room A is dirty. Room A is dirty.
तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट इमीडिएटली परफॉर्म करेगा दैट इट हैज टू सक, राइट. नाउ आफ्टर क्लीनिंग द सेंसर सेज दैट रूम ए इज क्लीन, राइट. नाउ द एजेंट परफॉर्म्स, एजेंट परफॉर्म करता है दैट इट हैज टू मूव राइट, राइट. नाउ व्हेन द एजेंट मूव्स राइट, यहाँ पे क्या कर रहा है एजेंट, ये नहीं पूछ रहा कि क्या रूम ए या रूम बी कल भी डर्टी था या नहीं, राइट. सो वे या फिर क्या 5 मिनट पहले वो क्या कर रहा था, उसको पिछली इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट. इट ओनली लुक्ड एट द करंट सिचुएशन कि अभी क्या उसको देख रहा है, उसके बेसिस पे वो अपना इमीडिएटली एक्शन ले रहा है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जहां पे एक्शन जो होता है वो लिया जाता है बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, नॉट ऑन द पास्ट हिस्ट्री, राइट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज अगर मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल लिया, ट्रैफिक सिग्नल, राइट. नाउ सपोज इमीडिएटली हमारी जो कार है, हमारी कार ने इमीडिएटली रेड लाइट देखा, राइट. नाउ व्हाट डू यू डू, एज सून एज यू सी अ रेड लाइट यू स्टॉप, राइट. तो क्या हम ये सोचते हैं उस टाइम पे कि क्या हम कल की ट्रैफिक रेड लाइट पे सेम रोड पे सेम लाइट जो थी वो रेड थी, ग्रीन थी या येलो थी इसी टाइम पे, हम ये नहीं सोचते. हमें एकदम से रेड लाइट दिखी, वी इमीडिएटली स्टॉप, राइट. सो करंट सिग्नल रेड मिला, करंट एक्शन उसके बेसिस पे स्टॉप हो गए हम. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स, राइट. अगर हम ह्यूमन रिफ्लेक्स की भी बात करें, सपोज डॉक्टर ने हमारी नी को हिट किया विद अ हैमर, राइट. सो इमीडिएट जैसे ही उसने हिट किया, इमीडिएटली हमारी लेग मूव करेगी, हमारा ब्रेन ये नहीं सोचेगा कि अब कल क्या हुआ था या मुझे पैर हटाना है या नहीं हटाना, राइट. इट सिंपली रिएक्ट्स. तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क, जहां पे एकदम से स्टिमुलस मिलते ही हमारा एक्शन होता है. हम ये नहीं सोचते कि हमने उस सेम सिचुएशन में कल क्या किया था, राइट. Now, why it is being called simple? Why it is called a simple reflex agent? Simple means because it simply follows one rule, that current situation means current action, nothing else. कोई परसेप्ट हिस्ट्री से हमें मतलब नहीं है कि कल क्या हुआ था या सेम सिचुएशन में 2 दिन पहले क्या हुआ था. करंट सिचुएशन जो है उसके बेसिस पे हम अपना करंट एक्शन लेते हैं, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. सो ये हमें डायग्रामेटिकली बताया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. तो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हमें मिले सेंसर, सेंसर्स ने जो है जो भी सिग्नल रिसीव किया. देन करंट सिचुएशन देखी क्या है, करंट सिचुएशन के बेसिस पे व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इफ देन रूल्स, जैसे हम वैक्यूम क्लीनर के केस में यूज कर रहे थे, राइट. देन बेस्ड ऑन द इफ देन रूल्स हमारे एक्चुएटर्स जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे कंडीशन एक्शन रूल्स आर सेम एज द इफ देन रूल्स, एंड एक्चुएटर्स जो है जो भी एक्शन लेंगे दैट इज पास टू द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली चेंजेस. तो बेसिकली एनवायरनमेंट जो होता है दैट इज एवरीथिंग अराउंड द एजेंट, चाहे वो रोड हो, रूम हो या हॉस्पिटल हो. सेंसर्स क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कैमरा हो गए, टेम्परेचर सेंसर हो गए, माइक्रोफोन हो गए. देन what the world is like now, what the world is like now means the current situation, कि हमारी current situation क्या है. this is indicating the current सिचुएशन. एग्जाम्पल्स क्या, रोड वेट है या फिर क्या रूम डर्टी है या फिर क्या ट्रैफिक सिग्नल रेड है, दैट इज द करंट सिचुएशन. कंडीशन एक्शन रूल्स बेसिकली क्या है, द ब्रेन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन एजेंट, राइट. तो बेसिकली रिफ्लेक्स एजेंट का जो ब्रेन है दैट इज गिवन बाय दिस कंडीशन एक्शन रूल. सो बेसिकली इफ देन रूल्स होते हैं कि इफ रूम इज डर्टी देन क्लीन, इफ सिग्नल इज रेड देन स्टॉप, इफ ऑब्स्टेकल अहेड देन ब्रेक. तो ऑल ऑफ दीज आर द इफ देन रूल्स. देन एक्चुएटर्स क्या करेंगे, जो एक्शन को परफॉर्म करेंगे. जैसे अगर हमें रूम डर्टी है देन सक करना है हमें, देन कौन सक करेगा, जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है वो अपने रोबोट आर्म के थ्रू जो डर्ट है उसको सक करेगा. या फिर अगर मुझे ब्रेक अप्लाई करना है इमीडिएटली, जैसे सिग्नल देखा देन स्टॉप, देन उस स्टॉप करने के लिए हम क्या एक्शन लेंगे, दैट आई हैव टू अप्लाई द ब्रेक, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर टेकन, एक्शन इज टेकन बाय द एक्चुएटर्स एंड अकॉर्डिंगली द एक्चुएटर्स जो भी एक्शन लेते हैं उसके बेसिस पे मेरा जो एनवायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है. तो कंडीशन एक्शन रूल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. कंडीशन एक्शन रूल्स क्या है, बेसिकली द ब्रेन ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. सो कंडीशन एक्शन रूल क्या है, अगर कंडीशन है दैट इफ कार इन फ्रंट इज ब्रेकिंग देन इनिशिएट ब्रेकिंग. तो ये क्या है, एक तरीके का कंडीशन एक्शन रूल है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये वाला एक्शन को परफॉर्म करो. इफ डोर इज ओपन देन क्लोज द डोर, अगर रेन स्टार्ट्स देन ओपन द अम्ब्रेला, इफ फैन इज ऑन एंड रूम इज कोल्ड, जो भी मेरी कंडीशन है, देन स्विच ऑफ द फैन. तो दिस इज हाउ द कंडीशन एक्शन रूल्स वर्क, कि ये कंडीशन है तो ये अकॉर्डिंगली मुझे ये एक्शन को परफॉर्म करना है.
Coming to the advantages of simple reflex agent, advantages क्या है? That it is easy to design, we can take fast decisions, it requires very little memory क्योंकि हमें कुछ store करके नहीं रखना, unlike the table driven agent जहाँ पे हमें store करके रखना पड़ता था. Then it works well in simple environments. पर drawback क्या है? Drawback ये है, suppose drawback समझने के लिए let's take an example. Let's say अगर मेरी self driving car है, उसका जो कैमरा है that is covered with mud, right? कुछ dirt की वजह से the camera of the self driving car got covered with mud. Now will the self driving car now will be able to detect the roads? No, right? So disadvantage क्या है मेजर इसकी, क्योंकि जो एजेंट है वो सिर्फ करंट परसेप्ट को देखता है, इट इग्नोर्स द पास्ट हिस्ट्री. अगर वो इंफॉर्मेशन मेरी रॉन्ग है या इनकम्प्लीट है, ड्यू टू विच इट कैन टेक द रॉन्ग डिसीजन, राइट? तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो तभी करेक्टली वर्क करेंगे अगर उनका जो इन्वायरमेंट है वो फुली ऑब्जर्वेबल है. अगर इन्वायरमेंट लेट्स से फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, देन इन दैट केस इट कैन टेक द रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट, ignoring the past history, right? Now let's look at the differences between the two types of agent that we studied, table driven agent and simple reflex agent. तो टेबल ड्रिवन एजेंट में क्या है, जितनी भी है सारी पॉसिबल सिचुएशंस को स्टोर करके रखता है, स्टोर्स ऑल पॉसिबल सिचुएशंस. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में क्या है, यूज करता है सिंपल इफ देन रूल्स. It does not need to store all the situations, simple condition चेक करता है और उसके बेसिस पे एक्शन लेता है, राइट? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है तो इट नीड्स ह्यूज मेमोरी. It does not need huge memory, little amount of memory will serve its purpose. यहाँ पे रिमेंबर करता है परसेप्ट हिस्ट्री को, यहाँ पे इग्नोर करता है परसेप्ट हिस्ट्री को. क्योंकि यहाँ पे सारी सिचुएशंस टेबल में लिखी है तो टेबल को सर्च करने में इट इज अ स्लो प्रोसेस. यहाँ पे सिर्फ इफ रूल देखना और उसके बेसिस पे एक्शन लेना है, तो इट इज स्लाइटली फास्ट. So these are some of the differences between table driven agent and simple reflex agent. Let's see diagrammatically the function of simple reflex agent. So how does a simple reflex agent works? So basically simple reflex agent again क्या करता है, percept receive होगा, action लेगा. Then action वो किस basis पे ले रहा है, जो भी उसको percept receive हो रहा है, that is the input, that is its current state, right? उस करंट स्टेट के बेसिस पे वो देखता है कि इस अगर ये करंट स्टेट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को क्या रूल करना है, राइट? सो बेसिकली जो इफ देन रूल्स होते हैं, इफ दिस कंडीशन देन दिस एक्शन. तो सबसे पहले वो देखता है परसेप्ट उसको क्या रिसीव हुआ, दैट इज इट्स करंट स्टेट. उस करंट स्टेट पे कौन सा रूल अप्लाई कर हो रहा है वो रूल देखता है वो. उस रूल के बेसिस पे उसको क्या एक्शन लेना है, दैट एक्शन इज रिटर्न. सो दिस इज द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, राइट? नाउ एक और एग्जांपल से देखते हैं क्यों हमें लग रहा है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है. So the main problem is, suppose let's take an example of car braking. Now suppose car braking में suppose अगर जो हमारे आगे एक कार है उसने immediately ब्रेक अप्लाई कर दी. If car in front is braking, this is the condition and accordingly हमें क्या एक्शन लेना है कि हमें अप्लाई करना है ब्रेक. अगर हमारे आगे वाली कार ने ब्रेक अप्लाई करे हैं, देन अप्लाई ब्रेक. नाउ सपोज जो हमारी आगे वाली कार है उसकी जो ब्रेक लाइट्स है वो ब्रोकन है, ब्रेक लाइट्स आर ब्रोकन, राइट? अब अगर एज अ ह्यूमन हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक लाइट्स ब्रोकन है, तो हम इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें दिख जाएगा कि जो कार की जो स्पीड है वो स्लो हो रही है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रेक को अप्लाई कर देंगे, राइट? बट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करेगा, वो तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करेगा. वो तो देखेगा कि करंट कैमरा इमेज में कार की क्या पोजीशन दिखा रहा है. करंट कैमरा इमेज में अगर कार की पोजीशन में ब्रेक लाइट्स जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं तो हमें ब्रेक अप्लाई करना है. अगर करंट कार की इमेज में ब्रेक लाइट्स जो हैं वो ऑन नहीं हो रही तो दैट मीन्स द कार इज मूविंग परफेक्टली एंड वी डोंट हैव टू अप्लाई द ब्रेक. तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट तो इस अप्रोच के साथ काम करेगा, राइट?
तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ने क्या किया, उसने सिर्फ करंट कार की इमेज को देखा। अब उस कार की इमेज में जो ब्रेक लाइट्स है वो तो नहीं विजिबल हो रही थी, ब्रेक लाइट्स तो ऑन नहीं थी, तो उसकी वजह से उसने ब्रेकिंग जो है वो डिटेक्ट नहीं करी। उसको लगा सब कुछ ठीक है, वो आगे बढ़ता गया एंड इमीडिएटली इट गेट्स बम्प्ड इनटू द कार दैट इज इन फ्रंट ऑफ इट एंड द एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होता है वो सिर्फ करंट परसेप्ट को ही देख रहा है। इट ओनली सीज द करंट परसेप्ट, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेना है। अगर करंट परसेप्ट किसी भी वजह से गलत है या इनकम्प्लीट है, then the decision making of the simple reflex agent can be wrong. Let's take another example. Suppose अगर वैक्यूम क्लीनर का एग्जाम्पल ले हम, वैक्यूम क्लीनर. Now suppose there are two rooms A and B. The robot जो है उसके पास दो ही परसेप्ट है, दो ही परसेप्ट वो रिसीव कर सकता है, या तो डर्टी है या क्लीन है, राइट? सपोज उसने करेंटली इनिशियली देखा ए इज क्लीन, ठीक है? रोबोट जो है उसने ए रूम से स्टार्ट करा, करंट परसेप्ट उसको मिला ए क्लीन है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर क्लीन है देन मूव राइट, राइट? रोबोट जो है वो बी रूम में मूव कर गया, देन करंट परसेप्ट उसको मिला कि बी जो है वो भी क्लीन है, बी इज ऑल्सो क्लीन। तो क्या होगा? अगर बी भी क्लीन है देन क्या एक्शन उसको लेना है? अगेन गो बैक टू ए, राइट? तो ए भी क्लीन है, बी भी क्लीन है। पहले ए क्लीन है तो बी में गया, बी क्लीन है वापस ए में आ गया, फिर से ए क्लीन है बी में गया, वापस बी क्लीन है ए में आ गया। तो दिस कंटिन्यूज फॉर एवर, सो बेसिकली इट गेट्स स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं द टेक्निक ऑफ रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन क्या कहता है? रैंडमाइजेशन कहता है दैट इंस्टेड ऑफ ऑलवेज मूविंग राइट, रोबोट जो है वो एक कॉइन को टॉस करता है, राइट? अगर हेड्स है देन मूव राइट, अगर टेल है देन मूव लेफ्ट। तो समटाइम्स क्या होगा? समटाइम्स ये रैंडम बिहेवियर जो होता है हेल्प करता है रोबोट को एस्केप सच लूप्स, राइट? बट दिस इज ऑलवेज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। बेटर सोल्यूशन क्या होगा कि हम एक दूसरे एजेंट पे मूव करें, विच इज द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड reflex agent. Let's understand what is model based reflex agent. So what is a model based reflex agent? Model based reflex agent होता है that remembers some information about the world using an internal state and uses that memory to make better decisions, right? So इसको समझने के लिए let's take an example. Let's say that you are driving, right? This is my car. सडनली हमारी कार के मेरी कार के आगे एक और कार है, राइट? नाउ सडनली अ बस कम्स इन फ्रंट ऑफ माय कार। यहाँ पे एक बस आ जाती है सडनली आउट ऑफ नोवेयर, अ बस अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ माय कार। अब बस ने क्या किया? मेरी कार के जो व्यू है उसको ब्लॉक कर दिया, राइट? अब इसके आगे क्या है मुझे नहीं दिख रहा, बट क्योंकि ये जो कार है कुछ सेकंड्स पहले मेरे आगे ही चल रही थी, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट नाउ। ऑल्दो मैं इसको अभी नहीं देख सकती, बट क्योंकि मेरी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है कि मेरी कार के आगे एक और कार थी, सो आई रिमेंबर इट। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट वर्क। ये सिर्फ करंट परसेप्ट नहीं देखता, अगर करंट परसेप्ट देखता तो इसे बस को ही नोटिस करता, उसके आगे जो कार है उसको नहीं याद होता। बट क्योंकि ये पास्ट मेमोरी में भी स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को, जहां पे स्टोर था कि उसको कुछ सेकंड्स पहले ये कार दिखी थी, so this is stored in its memory. So now on the basis of the percept, that means the bus current percept जो बस उसको अभी दिख रही है, and the past memory जो उसकी इंफॉर्मेशन में स्टोर्ड है कि ये कार और चल रही थी, इसके बेसिस पे द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू कीप योर मोबाइल फोन्स इनसाइड योर बैग्स। हमने अपने मोबाइल फोन्स को अपने बैग्स में रख दिया। नाउ द बैग इज क्लोज्ड, the bag is closed now. Now can you still say that my phone is inside the bag? Yes, because can you see it? No. But how do you know? Because you remember that the remembered function is called the internal state. Remembered function को याद है कि मैंने अपना फोन जो है वो बैग में ही रखा था। Although मुझे अभी नहीं दिख रहा कि जो फोन है वो मेरे बैग में, because the bag is closed, but I remember it. It is stored in my memory that I kept my phone in the bag. Right? So ये जो मेरा remembered information होता है इसको हम कहते हैं this is the internal state.
तो व्हाट इज एन इंटरनल स्टेट? इंटरनल स्टेट क्या होता है? एजेंट की मेमोरी होती है ऑफ द वर्ल्ड. इट शोज इन्फॉर्मेशन दैट द सेंसर्स कैन नॉट करेंटली ऑब्जर्व. वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जो सेंसर्स को अभी नहीं दिख सकते. जैसे हमने फोन का एग्जांपल लिया कि हमने फोन को बैग में रख दिया एंड करेंटली बैग इज क्लोज, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है कि मैंने फोन को बैग में रखा था, एकदम से कार आ गई मेरे व्यू के बीच में तो मुझे आगे का ट्रैफिक नहीं दिख रहा, बट कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी में स्टोर है कि कुछ सेकंड्स पहले मैंने अपने आगे वो कार देखी थी. राइट. सो दिस इज हाउ अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स. और ये कैसे मेमोरी में स्टोर करके रखता है? ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल स्टेट, जो हमें ये बताती है वो इन्फॉर्मेशन जो करेंटली मेरे सेंसर्स नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे. So this shows a diagrammatic representation of a model based reflex agent. तो model based reflex agent में क्या है? सबसे पहले हमारे पास environment है. environment से हमें sensors receive हुए, that means information receive हुई, percept receive हुआ. देन उस परसेप्ट पे एक्ट करने के लिए हम ये भी देखते हैं कि हमारी इंटरनल स्टेट क्या है. इंटरनल स्टेट हमने अभी क्या देखा? जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी कुछ देर पहले देखी थी वो हम स्टोर करके रखते हैं. राइट. तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो एजेंट की मेमोरी है ऑफ द वर्ल्ड, तो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो गोज इनटू इट. तो करेंटली वर्ल्ड कैसा दिख रहा है उसके लिए हम ये भी इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं कि कुछ देर पहले वो स्टेट हमारी क्या थी, कुछ देर पहले वर्ल्ड वो कैसा दिख रहा था और हमारे एक्शन से क्या फर्क पड़ रहा था. ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपना एक्शन को लेते हैं. उस एक्शन को लेने के लिए हम देखते हैं कि अगर मुझे ये मेरी कंडीशन है तो मेरे को क्या एक्शन लेना है. अगेन कंडीशन एक्शन रूल्स हम लेते हैं, देन एक्चुएटर्स एक्शन को परफॉर्म करते हैं एंड द एक्शन गोज इन द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट चेंजेस. तो ये वाला जो पार्ट है दिस कम्स एक्स्ट्रा इन द मॉडल रिफ्लेक्स एजेंट, जहाँ पे हम इंटरनल स्टेट को भी मैटर करते हैं. हम ये देखते हैं कि कुछ देर पहले हमने क्या इंफॉर्मेशन देखी थी जो अभी करेंटली हम नहीं देख पा रहे हैं. Right? So this is how a model-based reflex agent works. Now there are certain definitions that we keep in mind when we study the model-based reflex agent. The first is what is a model? So model का क्या मतलब है? Model is basically agent की understanding कि world कैसे काम कर रहे हैं. Right? Example जैसे agent knows कि कार जो है वो आगे forward move कर रही है. देन रेन्स जो है वो रोड को स्लिपरी बना देती हैं. देन टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है. सो ऑल दिस नॉलेज जो होती है दिस इज ऑल इज अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो एजेंट जो है वर्ल्ड को देख रहा है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है. तो ये सारी जो होती है एजेंट की अंडरस्टैंडिंग, इसको हम कहते हैं मॉडल. द सेकेंड इज व्हाट इज अ ट्रांजिशन मॉडल. ट्रांजिशन मॉडल का क्या मतलब है कि वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ जैसे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करा. सपोज मेरी करंट कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. मैंने एक्शन लिया प्रेस एक्सेलरेटर. ट्रांजिशन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि जो मेरी न्यू स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है. तो ट्रांजिशन मॉडल का मतलब कि वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ हमारे किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से. तो सबसे पहले था कि वर्ल्ड, सबसे पहले कि एजेंट की अंडरस्टैंडिंग कि वर्ल्ड क्या होता है, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, वो होता है मॉडल. देन ट्रांजिशन मॉडल का क्या मतलब है कि वो वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है हमारे किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से, दैट इज ट्रांजिशन मॉडल. एंड द थर्ड टाइप ऑफ सेंसर मॉडल. सेंसर मॉडल का क्या मतलब होता है कि कैसे सेंसर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं एनवायरनमेंट को. सपोज सेंसर्स ने ऑब्जर्व करा कि हैवी रेन स्टार्ट्स. राइट. तो सेंसर मॉडल जो है इमीडिएटली क्या करेगा, जो कैमरा का जो इमेज है इट विल सडनली बिकम ब्लरी. उसने ऑब्जर्व करा कि जो रेन है वो रेन होने लग गई एंड सेंसर मॉडल ने कैसे ऑब्जर्व करा एनवायरनमेंट को, क्योंकि जो कैमरा की इमेज है दैट इमीडिएटली बिकम्स ब्लरी. राइट. अनदर एग्जांपल कैन बी फॉग. जैसे ही फॉग हुई द सेंसर मॉडल नोज कि द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर. विजिबिलिटी बिकम्स पुअर. So this is a sensor model. So model का क्या मतलब है कि वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहा है, that is the agent's understanding, that is known as a model. ट्रांजिशन मॉडल का क्या मतलब है, वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ हमारे कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने से. एंड सेंसर मॉडल का क्या मतलब हुआ, सेंसर्स ने कैसे हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करा, दैट इज द सेंसर मॉडल. नाउ फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन कैन वी से कि जो मेरा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है दैट इज मच बेटर देन द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्यों? द सिंपल एग्जांपल इज दैट ऑफ अ कार, कि अगर हमारे आगे कोई कार मूव कर रही है, अभी हमें वो दिख रही है, सडनली कोई बीच में बाइसिकल आ गई या नॉट बाइसिकल, लेट्स से कोई बस आ गई जिसकी वजह से हमारी आगे की कार का व्यू ब्लॉक हो गया. तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में कहीं ना कहीं वो मेमोरी में स्टोर्ड है कि हमने उस कार को देखा था, बट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट उस मेमोरी को भूल चुका होगा क्योंकि वो मेमोरी को स्टोर ही नहीं करके रखता. राइट. So that is why model based reflex agent के बेसिस पे हम safer decisions ले सकते हैं, but simple reflex agent is more prone to accidents.
right? So let's incorporate the differences between model based and simple based reflex agent now. Model based, simple reflex. तो मॉडल बेस्ड क्या कहते हैं कि करंट परसेप्ट प्लस मेमोरी को यूज करो. सिंपल रिफ्लेक्स क्या कहते हैं, सिर्फ करंट परसेप्ट को यूज करो. सिंपल रिफ्लेक्स में कोई इंटरनल स्टेट नहीं होती जो हमने देखा अभी. मॉडल बेस के अंदर एक इंटरनल स्टेट होती है. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होता है उसमें कोई मेमोरी नहीं है, दैट इज सेम थिंग ओनली. यहाँ पे क्योंकि मेमोरी होती है तो हमारी पास्ट ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो रिमेंबर करके रखते हैं. रिमेंबर्स पास्ट ऑब्जर्वेशन. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो कब बेटर काम कर सकता है, जब जो मेरा एनवायरनमेंट हो वो फुली ऑब्जर्वेबल हो. क्योंकि पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स. So for simple reflex agent, I need fully observable environment, but model-based reflex agent, it can work in partially observable environment as well. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. In the upcoming video, we'll learn about the remaining type of agents, that are goal-based agents and utility-based agents. You can also follow me on Instagram at Nikita Jain Insights and learn with Nikita Jain, where I regularly take up student doubts. Thank you.